एक्ट्स चैप्टर 20 1 वर्स से 16 वर्स, जोब 19 चैप्टर, 20 चैप्टर, 21 चैप्टर। हम एक्ट्स को पढ़ेंगे 20 चैप्टर 1 वर्स से 16 वर्स। Paul goeth to Macedonia. He celebrateth the Lord's Supper, and preacheth. Eutychus is raised to life. Paul's charge to the elders at Ephesus. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे 16th वर्स तक। And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples and embraced them and departed for to go into Macedonia. And when he had gone over those parts and had given them much exhortation, he came into Greece and there abode 3 months. And when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed to return through Macedonia, and there accompanied him into Asia Sopater of Berea and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus and Gaius of Derbe, and Timotheus, and of Asia Tychicus and Trophimus. This going before tarried for us at Troas, and we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in 5 days, where we abode 7 days. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together, and there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep. And as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the 3rd loft, and was taken up dead. And Paul went down and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves, for his life is in him. When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed. And they brought the young man alive, and were not a little comforted. And we went before to ship, and sailed unto Assos, there intending to take in Paul, for so had he appointed, minding himself to go afoot. And when he met with us at Assos, he took him in, and came to Mytilene. And we sailed thence, and came the next day over against Chios. And the next day we arrived at Samos, and tarried at Trogyllium. And the next day we came to Miletus, for Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia, for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost. बीस अध्याय 1 वचन से 16 वचन। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 1 वचन से 16 वचन हम पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। मकेदुनिया, यूनान और त्रोआस में पौलुस। 20 अध्याय 1 वचन से 16 वचन। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकेदुनिया की ओर चल दिया।
उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वह यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर वह वहाँ से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था, तो यहूदी उसकी घात में लगे। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। बिरिया के पुर्रुस का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्कुस और सिकुन्दुस और दिरबे का गयुस और तीमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोहते रहे और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुँचे और 7 दिन तक वहीं रहे। त्रोआस में यूतुखुस का जिलाया जाना। 7 वचन से आगे, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। त्रोआस से मिलेतुस की यात्रा। 13 वचन से आगे, हम पहले ही जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहाँ से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वह अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। वहाँ से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुँचे और अगले दिन सामुस में जा लगे। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। जोब 19 चैप्टर, 20 चैप्टर, 21 चैप्टर हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। चैप्टर 19, Job complains of his friends' cruelty, his belief in the resurrection. First verse से पढ़ेंगे। Then Job answered and said, How long will ye vex my soul and break me in pieces with words? This 10 times have ye reproached me. Ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me. And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself. If indeed ye will magnify yourselves against me and plead against me my reproach, know now that God hath overthrown me and hath compassed me with his net. Behold, I cry out of wrong, but I am not heard. I cry aloud, but there is no judgment. He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths. He hath stripped me of my glory and taken the crown from my head. He hath destroyed me on every side, and I am gone. And mine hope hath he removed like a tree. He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him as one of his enemies. His troops come together and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle. He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me. My kinsfolk have failed
and my familiar friends have forgotten me. They that dwell in mine house and my maids count me for a stranger. I am an alien in their sight. I called my servant, and he gave me no answer. I entreated him with my mouth. My breath is strange to my wife, though I entreated for the children's sake of mine own body. Yea, young children despised me. I arose and they spake against me. All my inward friends abhorred me, and they whom I loved are turned against me. My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth. Have pity upon me. Have pity upon me, O ye my friends, for the hand of God hath touched me. Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? O that my words were now written, O that they were printed in a book, that they were graven with an iron pen and laid in the rock forever. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the later day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. But ye should say, why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me? Be ye afraid of the sword, for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment. Chapter 20. Zophar shews the state and portion of the wicked. First verse. Then answered Zophar the Naamathite and said, therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste. I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer. Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth, that the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment? Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds, yet he shall perish forever like his own dung. They which have seen him shall say, where is he? He shall fly away as a dream, and shall not be found. Yea, he shall be chased away as a vision of the night. The eye also which saw him shall see him no more, neither shall his place any more behold him. His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods. His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust. Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue, though he spare it and forsake it not, but keep it still within his mouth, yet his meat in his bowels is turned. It is the gall of asps within him. He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again. God shall cast them out of his belly. He shall suck the poison of asps. The viper's tongue shall slay him. He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter. That which he labored for he shall restore. For shall he restore, and shall not swallow it down. According to his substance shall the restitution be, and he shall not rejoice therein, because he hath oppressed and hath forsaken the poor, because he hath violently taken away an house which he builded not. Surely he shall not feel quietness in his belly. He shall not save of that which he desired. There shall none of his meat be left. Therefore shall no man look for his goods. In the fullness of his sufficiency he shall be in strides. Every hand of the wicked shall come upon him. When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating.
He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through. It is drawn and cometh out of the body, yea, the glittering sword cometh out of his gall. Terrors are upon him. All darkness shall be hid in his secret places. A fire not blown shall consume him. It shall go ill with him that is left in his tabernacle. The heaven shall reveal his iniquity, and the earth shall rise up against him. The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath. This is the portion of a wicked man from God. And the heritage appointed unto him by God. Chapter 21. Job craves to be patiently heard because of his calamities. He shows that sometimes the wicked do so prosper that they despise God, etc. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. But Job answered and said, Hear diligently my speech, and let this be your consolations. Suffer me that I may speak, and after that I have spoken, mock on. As for me is my complaint to man, and if it were so, why should not my spirit be troubled? Mark me and be astonished, and lay your hand upon your mouth. Even when I remember, I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh. Wherefore do the wicked live? Become old, ye are mighty in power. Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes. Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them. Their bull gentereth and faileth not. Their cow calveth and casteth not her calf. They send forth their little ones like a flock, and their children dance. They take the timbrel and harp and rejoice at the sound of the organ. They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave. Therefore they say unto God, Depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways. What is the Almighty that we should serve him? And what profit should we have if we pray unto him? Lo, their good is not in their hand. The counsel of the wicked is far from me. How oft is the candle of the wicked put out, and how oft cometh their destruction upon them? God distributeth sorrows in his anger. They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away. God layeth up his iniquity for his children. He rewarded him, and he shall know it. His eyes shall see his destruction, and shall drink of the wrath of the Almighty. For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst? Shall any teach God knowledge, seeing he judgeth those that are high? One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet. His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow. And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure. They shall lie down like in the dust, and the worms shall cover them. Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me. For ye say, Where is the house of the prince? And where are the dwelling places of the wicked? Have ye not asked them that go by the way? And do ye not know their tokens? That the wicked is reserved to the day of destruction. They shall be brought forth to the day of wrath. Who shall declare his way to his face? And who shall repay him what he had done? Yet shall he be brought
to the grave and shall remain in the tomb. The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him. How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood. अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय 20 अध्याय 21 अध्याय हम DSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। अय्यूब का उत्तर पहले वचन से। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव उपद्रव यूँ चिल्लाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता, और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। मेरा वैभव उसने हर लिया है, और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा, और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है, और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं, और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे, वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी है। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ, तब वह नहीं बोलता। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मुझे मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों को की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं, और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं, और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं, और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूँ। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो, हम इसको कैसे सताए, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। सोपर का तर्क 20 अध्याय पहले वचन से। तब नामाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं, और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूँ। मैंने ऐसी चितौनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई, और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है, जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता, और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपनी विष्ठा के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा।
और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह स्वप्न के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लौटा देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे और वह उसे बचा रखे और न छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा और वह उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का विष चूस लेगा। वह करैत के डसने से मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा। जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा और वह उसे निगलने न पाएगा। उसको उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना उसे न मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया। उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने न पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा न सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए न बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना न रहेगा। पूरी संपत्ति रहते हुए भी वह सकेती में पड़ेगा। तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा। उसकी चमकीली नोक उसके पित्ते से होकर निकलेगी। भय उसमें समाएगा। उसके गाड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूकी हुई न हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी। वह परमेश्वर के क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है। अय्यूब का सोपर को उत्तर 21 अध्याय पहले वचन से। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब ठट्टा करना। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूँ? फिर मैं अधीर क्यों न हूँ? मेरी ओर देखकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांतों तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता है और चुकता नहीं। उनकी गायें बियाती है और गर्भ कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर ले जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं?
तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने में से उसका क्या काम रहा। क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती है। कोई अपने जीव से कुढ़ कुढ़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूँ और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते हो, रईस का घर कहाँ है, दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहे? परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता है और महाप्रलय के समय ऐसे लोग बचाए जाते हैं? उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा? उसने जो किया है उसका बदला कौन देगा? तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं और जैसे पूर्वकाल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो? 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 7 चैप्टर 36 वर्स से 50 वर्स। जोशुआ 5 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 36 वचन से 50 वचन तक। यहोशुआ की पुस्तक 5 अध्याय। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम अपने व्यक्तिगत पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे और इसे पढ़ते समय परमेश्वर हमसे वचनों के अधीन आने के लिए, कोई बातें हमको सिखाने के लिए, हमारे अंदर कुछ प्रकाशन देने के लिए, अगर हमारे मन बुद्धि सोच में कुछ दे रहा होगा तो हमने उसको लिख लेना है और वो नोट्स बनाकर हमने उस वचन के आधार से अपना जीवन चलना है। जब हम ऐसे 2 साल के अंत में देखेंगे, परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर इस्तेमाल करता है और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। हमने इस अनुग्रह का निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।